Bade Ghulam Ali Khan. On 2nd April 1902, while the wheat fields swayed in the fragrant cool breeze in Kasur, Mai Buddhi, wife of Ali Bux Khan, gave birth to a boy. The elders of the town predicted that the child would bring joy to millions and achieve great fame in the world of music. Mai Buddhi brought up Ghulam Ali and her younger son, Barkat Ali, with extreme love and care, despite considerable financial difficulty. Her husband, Ali Bux Khan, a court musician of the state of Jammu and Kashmir, had married again and deserted her. Mai Buddhi stitched garments to earn money. Ghulam Ali was devoted to her. As a young boy, Ghulam Ali picked up little ditties and songs from wandering minstrels, peasants, shepherds, fakirs and jogis. He could memorize words instantly and sing difficult compositions. He would delight the people of Kasur with his songs, singing them with energy and enthusiasm in his unique voice. Ghulam Ali's mother would often send him to the market for provisions. There too, people would stop him and ask him to sing a particular melody. At the sweet shop, the shopkeeper would request him to sing and afterwards present him with sweets. Ghulam Ali's father came to Kasur one day and quite by chance heard him singing a song. Ustad Ali Bux Khan knew at once that his son had a natural gift to sing. However, since Ali Bux Khan Sahib lived in Jammu, he was unable to give his son regular talim. Kale Khan Sahib, the younger brother of Ali Bux Khan, was also a well-known singer. It was he who adopted Ghulam Ali and taught him to sing, grooming him to be his successor. The child Ghulam Ali would cook, clean and fetch water for his guru, serving him in the Guru-Chela tradition. Kale Khan Sahib was a hard taskmaster and a strict disciplinarian. Ghulam Ali was determined to learn and serve his uncle diligently. In 1911, Kale Khan took Ghulam Ali to the Delhi Darbar being organized in Delhi to welcome King George. Kale Khan Sahib had been invited to sing before a select gathering of connoisseurs for which he was handsomely rewarded. The visit to Delhi had a deep impact on Ghulam Ali. He saw and experienced what a challenge it was for a singer to perform in front of large audiences, especially of Rajas, Maharajas and Nawabs. Ghulam Ali observed his uncle more carefully and tried to reproduce musical phrases without distorting his face. He learned the real meaning of Shuddh Mudra, Shuddh Vani, that is, purity of expression combined with clarity of voice. Once, Ghulam Ali found an old Palestinian string instrument called barbat in a shop selling musical instruments. He did not have the 5 rupees to pay for it. However, the kind shopkeeper allowed him to take it away upon seeing Ghulam Ali's deep interest in the instrument. At home, Ghulam Ali cleaned and polished the instrument. When he plucked the strings, the sound effect was fascinating. He could tune the instrument strings to the same notes of the rag that he wished to sing. He named it the Surmandal. Soon, Ghulam Ali and his Surmandal became inseparable. Today, almost all singers use it as their accompaniment, in addition to the Tanpura, Sarangi and Tabla. Ghulam Ali was deeply affected by the sounds and moods of nature. The varying tones of nature made an impact on his sensitive soul. When he practiced the alaps of a rag, he would feel that his music blended harmoniously with the music of the cosmos. It was a sad moment for Ghulam Ali when Ustad Kale Khan Sahib died in 1918. He decided to become an accomplished musician like his uncle. On his mother's advice, Ghulam Ali went to his father in Jammu. His father made Ghulam Ali stay in the house of one of his disciples, where he would come to teach his son. During this time, Ali Bux Khan asked his son to memorize and practice a palta, that is, a combination of notes in ascending order, for a whole year. Later,
When his father heard Ghulam Ali sing it, he was overjoyed and said, Puttar, nobody like you has appeared in 7 generations of our family. Nor is there any possibility of anyone matching your excellence in the future. There was no looking back for Ghulam Ali Khan, and for someone as talented as him, it was not difficult to become popular in musical circles. Ghulam Ali soon came to be recognized as one of the most successful singers of his time. मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिकाचू हूँ। तुम्हें मुझे देखना बहुत पसंद है, पर मुझे तो स्टोरी सुनना पसंद है। एक काम करो, तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर दोनों मिलकर स्टोरीज देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे बड़े गुलाम अली खान। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, 2 अप्रैल 1902 में गेहूं का जो खेत है कसूर, आप देख सकते हैं कसूर एक गांव में, वहाँ पे माई बुद्धी जो वाइफ थी अली बखर खान की, उनकी ये वाइफ है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, बेबी बॉय को। और बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि ये म्यूज़िक में बहुत बड़ा नाम कमाने वाला है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने वाला है, ऐसे बताते थे। माई बुद्धी जो है वो गुलाम अली को और उसका बड़ा भाई जो बरकत अली था, इनको बहुत प्यार से और बड़े ही अच्छे से रखती थी। उनके घर में पैसों की बड़ी तंगी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से उनको पाल पोस रही थी। अली बखर खान जो बख खान है, उसने कोर्ट में म्यूज़िशियन का, जम्मू कश्मीर के कोर्ट में काम करते थे म्यूज़िशियन का। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और माई बुद्धी को छोड़ दिया। फिर बाद में माई बुद्धी ने सिलाई मशीन का काम शुरू कर दिया। वो कपड़े सिलती थी, पैसे कमाती थी, फिर दोनों बच्चों का देखभाल भी अच्छे से करती थी। अब ये गुलाम अली जो है, ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वो जब भी बाहर बैठा करते थे तो वो रास्ते से आने वाले फ़कीर को, साधु लोगों को देखते थे और वो जो गाना गाते हैं वैसे ही गाने की कोशिश वो हमेशा करते थे। जब भी वो किसी गाने को सुन लेते थे, तुरंत वो गाना बोलते थे। कसूर के सारे लोग जो थे वो उनके गाने की दीवाने थे। जब भी वो गाना गाना शुरू कर देते थे, उनकी आवाज़ में ऐसी जादू थी कि लोग खींचे आ जाते थे। उनकी माँ जब उनको मार्केट में भेजती थी तो लोग उनको रुक रुक के उनको गाना गाने के लिए बोलते थे। जब वो कहीं मार्केट में जाते थे स्वीट लेने के लिए, तो मिठाई वाला उनको बोलता था गाना सुनाओ। फिर गाना सुनाने के बाद उनको वो मिठाई फ्री में दे देता था, उपहार के जैसे। तो एक दिन क्या हो गया, कसूर में जब उनके पिताजी गुलाब अली के जो पिताजी है वो एक दिन आए थे, तो उन्होंने इनका गाना सुन लिया, गुलाम अली का। तो उस्ताद अली बख खान ने जब ये सुना तो उनको पता चल गया कि अपना बेटा जो है ये एक नॉर्मल सिंगर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। तो वो तो खुद जम्मू कश्मीर में रहते थे, तो वो तो उसको रेगुलर तालीम नहीं दे सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे सिंगिंग का। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो भाई था काले खान साहब, उनको इसको सिंगिंग के लिए तालीम देने के लिए बोल दिया और गुलाम अली अब उनके शिष्य बन गए थे। जो खान साहब जो है वो, उन्होंने फिर इनको अपने घर में रखा। वो खाना बनाते थे, कपड़े बर्तन सब काम किया करते थे। जैसे गुरु के घर में एक शिष्य गुरु चेला जो ट्रेडिशन है, वैसे ही ये काले खान साहब के घर में काम करते थे और गाना सीखते थे। काले खान साहब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और अपने म्यूज़िक के प्रति उनका बहुत चाव से सिखाते थे। वो अंकल थे, लेकिन काले खान साहब ने गुलाम अली को जब दिल्ली दरबार में 1911 को, दिल्ली दरबार जो किंग जॉर्ज के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वहाँ पे सबसे पहले लेके गए।
तो काले खान साहब ने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा नवाब आए थे, उनके सामने सबसे पहले इनको गवाने की क्या दी, अपॉर्चुनिटी दे दी। पहली बार गुलाम अली ने इतने सारे लोगों के सामने गाना गाया। पहले तो थोड़ा डर रहे थे कि इतने सारे लोग, और ख़ासकर राजा महाराजा थे, नवाब थे, इन लोगों के सामने गाना गाने, तो मतलब ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही योगदानपूर्ण आप बोल सकते हैं, ऐसा अनुभव उनको मिला था, वो भी उनके गुरु के कारण। फिर उन्होंने बाद में अपना जो म्यूजिशियन जो क्वालिटीज़ है, जो चेहरा होता है, जैसे राग के अनुसार अपने चेहरे को ढालना पड़ता है, उसे शुद्ध मुद्रा और शुद्ध वाणी बोला करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली, अपने आवाज़ में एक क्लैरिटी ला दी, एक सुकून सा ला दिया। फिर वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान में जब गए थे, तो जो फिलिस्टाइन जो तार यंत्र बरबट होता है, बरबत, वो उन्होंने देखा, उनको बहुत पसंद आया। दुकान वाले ने वो 5 रुपए का है ऐसे बताया, इनके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन बेचारे दुकानदार को इनके ऊपर दया आ गई कि इसको ये अगर बहुत प्यार आ रहा है बरबत के ऊपर, तो उसने इनको दे दिया, गुलाम अली को ऐसे ही फ्री में दे दिया। गुलाम अली घर आए, घर आने के बाद वो बरबत जो तार यंत्र था उसको उन्होंने अच्छे से सेट किया, पोंछा, जो पॉलिशिंग रहता है वो किया, और उसके ऊपर वो जब धुन छेड़ने लगे तो एक साउंड जो आ रहा था वो बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला साउंड था। फिर इन्होंने क्या किया, अलग अलग राग जो होते हैं वो ये स्ट्रिंग के ऊपर, ये तार के ऊपर उन्होंने बना लिए, उसको उन्होंने सुरमंडल बोला गया, सुरमंडल। और ये सब चीज़ें आज भी सिंगर जो हैं आज भी इसको यूज़ करते हैं। और ये सुरमंडल गुलाम अली खान साहब ने बनाया था, किया था, और वो उसका रेगुलर प्रैक्टिस किया करते थे। तानपुरा, सारंगी और तबला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये आप यंत्र यूज़ करोगे। गुलाम अली साहब जो थे वो नेचर के बड़े बड़े फ़ैन थे, तो वो जब भी नेचर मतलब नेचुरल मोमेंट में, नेचुरल थिंग में जाते थे, तो वहाँ पे गाने गाते थे। कोयल की आवाज़ होती है, हवा होती है, इन आलाप जो था, राग जो था, जब वो गाते थे तो उनको हमेशा जो नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है वो बहुत ही लाभदायक होता था। लेकिन उनके जीवन में एक दुख भरी घटना घटी कि उनके उस्ताद जो है काले खान साहब 1918 में उनका देहांत हो गया, और फिर ये अकेले से महसूस करने लगे क्योंकि उनके गुरु ही नहीं थे। फिर जब उनकी मम्मी ने उनको बोला, माँ ने उनको बोला कि अपने पापा के यहाँ जम्मू में चले जाओ, तो उनके जो पापा हैं उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य के घर में इनको पहले रहने के लिए और फिर वहाँ पे जाके उनको तालीम देना शुरू किया। तो अपने बेटे को अली बख्श खान साहब ने अपने बेटे को सब धुन जो थी, गाने जो थे, उसको पलता बोलते हैं, पलता को याद करने के लिए बोला। वो उतरते क्रम में एक पूरा साल भर उन्होंने प्रैक्टिस किया। गुलाम अली साहब ने पूरा एक साल भर करने के बाद उनके पापा ने जब उनको एक बार सिंगिंग करते हुए देख लिया तो वो बोले कि पुत्र, जो तुम गा रहे हो वैसे तो हमारी 7 पीढ़ियों में कोई गाया नहीं है, और आगे भविष्य में भी इतना अच्छे से कोई गाएगा, इतनी आवाज़, इतना दर्द तुम्हारे आवाज़ में है, ये नहीं हो सकता है, और तुम ऐसे ही सिंगिंग करते रहो। फिर गुलाम अली खान को इतना मॉरल सपोर्ट उनके फादर का मिला और वो अपनी आवाज़ में और बुनियादी लाते गए, और म्यूज़िकल सर्कल में उनका आवाज़ सबसे पॉपुलर बना रहा। तो गुलाम अली खान एक सक्सेसफुल सिंगर बनने का यही था कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क भी किया था।